कितना हुआ पहले क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5? की प्रूव करना है? विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, बोलो, 6 पाई ईटा आर वी। किस तरह प्रूव करना है? यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। एफ फोर्स डिपेंड्स ऑन केड़े केड़े पैरामीटर से डिपेंड करती है? एक्सपेरिमेंट तो पता लगेगा पहले। इट डिपेंड्स ऑन ईटा आर वी, बट पावर केड़ी है सानू नहीं पता। ए बी सी। फोर्स ईटा आर ते वी दे डायमेंशन फार्मूला लिखो। फोर्स ईटा आर वी, इन्हां दा डायमेंशन, एक मिनट, फोर्स ईटा आर वी दा डायमेंशनल फार्मूला लिखो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बोलो की है? m1 l1 t-2। ईटा का बोलो m l t, यही जगह गल किया सीगा। ए आर m0 l1 पावर b। वेलोसिटी length by time, mass is not, m power 1 l power 1 t power -2, power of mass, dimensions of mass 1a 0b 0c, that means 1a only. Length -1a plus 1b plus 1c. Time -1a 0b -1c. Compare powers of MLT. Compare powers of ML and T. Comparing power of M की आ जाएगा थोड़े को, A is equal to 1, 1 equation. 2 -1A plus 1B plus 1C is equal to 1. -1A minus 1C is equal to -2. Put A is equal to 1 in this equation. Solve करके थोड़े को आ जाएगा A is equal to 1, C is equal to, and B is equal to 1. Put these values here. तो थोड़े को क्या आ गया? F is proportional to eta's power 1, R's power 1, B's power 1. एक्सपेरिमेंट करके की पता लगता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी F is equal to 6 pi eta R V। आ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है ये बाय एक्सपेरिमेंट आ जाएगा।
उन्होंने मतलब भी समझिए की है, ये तो डायमेंशंस यूज करके कर लिया। व्हेन अ रेन ड्रॉप मूव्स इन एयर, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, the drop moves with certain speed v, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। one layer opposes motion of a other layer. Whenever an object, even a cricket ball, moves in air, there is a viscous force. When a car moves in air, there is a viscous force. When the aeroplane moves in air, there is a viscous force. ਸਾਡੇ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, that is a ball, sphere. ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੈਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਬਲੇਡਸ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਬਲੇਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਫੀਟ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਲੈਸ, ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੈਫਰ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। अगर कंप्लीट नहीं किया, टेक 1 मिनट, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो की है, की पता करना है क्वेश्चन नंबर 5, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का डिक्शनरी मीनिंग की है, एंड वेलोसिटी, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया बई? थेरी के हिसाब नाल तो कोई एंड वेलोसिटी होंदी नहीं। अगर ग्रेविटेशन की गल करिए, इन ग्रेविटेशन v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू व्हाट, 2as. If the height or the distance keeps on increasing, speed also keeps on increasing, as per theory तो है। as per theory कितना नंबर क्वेश्चन है, 5। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, अगर थियरी की गल करिए तो याद करो, if a particle covers distance x, what is the speed of the particle? v square minus 0 square is equal to 2gx. v is equal to 2gx root. theory तो ये, but it is true for vacuum. Practical in any of the liquid, in any of the fluid I will say, object weight किधर एक्ट करता है ऑब्जेक्ट का, डाउनवर्ड, mg से 100 ही लिखा है नोट्स, कितना 100 वेट, ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अप थ्रस्ट any value say 10 and viscous force, initial viscous force when the speed is 0 is 0, तो नेट फोर्स कितनी लगती है, 100 माइनस 10 कितनी बन गई 90। ये एक्सेलरेशन कितनी आऊगी
90 डिवाइड बाय मास। एक्सेलरेशन नाल की होगा, यदि स्पीड की कर जाएगी इनक्रीज कर जाएगी। थोड़ा जिहा होर नीचे आ गए, वेट mg 100, up thrust remains the same. What about this viscous force? This viscous force will change. क्यों? 6 pi eta rv, क्योंकि स्पीड की होगी इंक्रीज कर। सो दिस इज 100, दिस इज 10, मान लो ये भी 10 होगी। 100 माइनस 10 कितना बन गया 80। 80 डिवाइड बाय मास, फिर एक्सेलरेशन होगी। करते जावांगे की होएगा, एक स्टेज आ जाएगी when mg is say 100, 6 pi eta r, we did this downward force say 100, ये देखो आ गया अप थ्रस्ट कितना एज इट इज say 10 and say this is 90। हुण बोलो नेट फोर्स कितनी आई? 0। एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन 0 का की मतलब है वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब है वो वैक्यूम च है, प्रैक्टिकली ये वाला है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਇਲਟ ਪਲੇਨਸ ਹੈ ਜਿਸ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਲ ਆਊਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ, ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਚ, ਆਈ ਥਾਟ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਰੋਪਸ ਵਰ ਦੇਅਰ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਅਬਵ, ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਡ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਸਿਗਰਟ ਦਾ, 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲਿਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੌਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਆਈ ਸਰਵਾਈਵਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਕॉल ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। I reached a terminal velocity। ਇਹਦਾ मतलब है weight किधर downward is equal to up thrust plus viscous force। up thrust plus viscous force कितने इक्वल है 6 pi eta r। VT किमें पता लग करूँगा, mg माइनस अप थ्रस्ट डिवाइड बाय 6 pi eta r। मास ऑफ द पार्टिकल, स्फीयर की गल करते हैं, बॉल की गल करते हैं। बोलो वॉल्यूम 4/3 pi r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द मटीरियल से आयरन बॉल इंटू g माइनस अप थ्रस्ट की इक्वल होती है वेट बाइंड फोर्स, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लिक्विड डिस्प्लेस करता 4/3 pi r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये तो मास आया भाई, इंटू जी डिवाइडेड बाय 6 pi eta r। सॉल्व करके की आ गया थोड़े को टर्मिनल वेलोसिटी। बोलो अब 4/6 कितना बन जाएगा 2/3 पाई कैंसल, r क्यूब डिवाइड बाय r की आ गया
ईटा आएगा डिनोमिनेटर च, डेंसिटी ऑफ मटीरियल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो कंपटीशन का क्वेश्चन है, इफ रेडियस रेन ड्रॉप का रेडियस डबल कर दिए तो टर्मिनल वेलोसिटी ते की फर्क पैंदा है। इफ यू डबल द रेडियस टर्मिनल वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। एंड ते रिजल्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r² / 9 ईटा रो मटीरियल। ਇਹ 'ਚ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ तो ਇਹਦੇ नीचे ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, टर्मिनल वेलोसिटी VT ਤੋਂ 2/9 यस 3 एक होर भी तो है करैक्शन बई 2/9। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ ਬੋਲੋ ਇਹਦੀ, नो स्लोप बोलो की है, स्लोप डिक्रीजेस, देखो ध्यान नाल ज़्यादा स्लोप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। इत्थे जाके की हो गया, स्लोप 0 हो गई। ठीक है, स्लोप 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0। इत्थे की है, ज़्यादा है, देखो स्लोप ज़्यादा है, स्लोप 5 4 3 2 1 0। इत्थे चेक करो, ज़्यादा सी ना एक्सेलरेशन पहले कितनी 100 - 10 90 डिवाइड बाय मास। इत्थे 100 - 20 10 10 20 yes 100 - 20 80 divided by mass. So as the particle moves down, acceleration keeps on decreasing, but है वो positive। ब्रेक नहीं लग रहे, ਉਹਦੇ ਚ A नेगेटिव ਹੁੰਦਾ, ब्रेक नहीं लग रहे, particle velocity is increasing, but acceleration ਦੀ पहले वैल्यू ज़्यादा है, फिर हौली 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 that value keeps on decreasing। 4 minutes to write। कंपटीशन बहुत क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6 की गल करते हैं। बोलो की है स्ट्रीमलाइन फ्लो की है, स्ट्रीमलाइंस दी प्रॉपर्टीज की है, टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन फ्लो की है, टर्बुलेंट फ्लो की है, लेमिनार, ये सब बेसिक की गल करते हैं। 26 जन ते परेड होएगी। 26 जन ते परेड दे विच सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੋਲਜਰਸ ਆਰ ਇਨ ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਫਾਰਮੈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ VBR 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਨੋ ਵਨ ਨੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਡਮ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਹੈਫੇਜ਼ਰਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਫੇਜ਼ਰਡ, ਰੈਂਡਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। PQR ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, PQR ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ P, this is Q, this is R, three particles. At P there is a velocity of the particle, value ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ 10 meter per second, say 10 meter per second. At Q there is a value, speed increase ਕਰਦੀ ਹੈ, as area decreases speed increases। ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। You decrease area, speed increases. Let this value be 12 meter per second. ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 14 meter per second. So there is a particle, at this it is 10. Right now you can predict that when this same molecule will reach at this position, its speed will be 14. ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਈਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Streamline flow is a flow in which every particle of the liquid follows exactly the path of its proceeding particle and has the same velocity as that of proceeding particle while crossing through that point. तो एक हो गया disciplined, organized। स्ट्रीमलाइन की है एक्चुअल पाथ कवर्ड, अज का पाथ बनया आ वाला पाथ है, दिस पाथ इज अ स्ट्रीमलाइन। ते फ्लो की नेचर किहड़ी है, स्ट्रीमलाइंड। इस पाथ, जिस पाथ ते पार्टिकल मूव करता है उस पाथ नूं की कहंदे हैं, स्ट्रीमलाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन की लिखा है, नो टू लाइन्स स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन, अगर क्रॉस कर गई फिर बोलो इस पॉइंट पे ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होगा, इट इज मूविंग along this line, ਇਹਦਾ मतलब है it is moving along this line। is it possible that a particle is moving in two directions at one point of time? ये possible नहीं है, that is why no two streamlines can cross each other। second, more crowding of streamline means high speed। करके देख लेने, पाइप बना देने एक, देखते हैं स्ट्रीमलाइंस दी क्राउडिंग हो रही है एज यू मूव फ्रॉम 1 to 2, स्ट्रीमलाइन दी की हो रही है, क्राउडिंग हो रही है। सो एट 2 वेलोसिटी
is high. At 1, velocity is low. Streamline अगर नज़दीक आ रही हैं, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होगा? Velocity is increasing. 3 minutes to write. फोर मिनट्स कर लो, कोई गल। क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो एंड व्हाट इज अ स्ट्रीमलाइन। डिसिप्लिनड फ्लो ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ streamline flow and the path along which the particle moves is termed as streamline. No two streamlines can cross. Crowding of streamlines means high speed. टर्बुलेंट फ्लो किस तरह का है? अनऑर्गेनाइज्ड, हैफेजर्ड, रैंडम, ये किस तरह होगा? ब्रिज वो कहते सपोर्टेड होंगे है पिलर्स। इस तरह वाटर आ रहा है, टॉप भी दिखाने हैं। इस तरह वाला केस है, पिलर है, इस तरह पानी आ रहा है। तो आएगा कुछ वाटर इस साइड पे चला जाएगा, कुछ वाटर इस साइड पे चला जाएगा, विच की हो जाएगा, प्रेशर लेस हो जाएगा। दैट इज ए वाटर वापस आएगा।
दैट इज़ वाई तुसीं देखिया है ब्रिजेस ते आवाज़ आ रही होंदी है ज़्यादा। तुसीं रोड ब्रिज ते जिहड़ा रिवर के उपर ब्रिज बनाया है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ खड़ के देखो उत्ते पानी की आवाज़ आ रही होंदी है। क्यों आ रही है ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ टॉप भी दिखा रहे हैं, ये पिलर है, ये वाला पिलर है, टॉप तो दिखा रहे हैं इस तरह। तो वाटर किस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। इत्थे की होगा, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर इस तरह वाटर टर्न करी जाऊगा, हिट करेगा दोनों साइड तो आके, पता नहीं लगना मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले जाएंगे, अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे, डिसिप्लिन का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह फ्लो की है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो लैमिनार दा स्ट्रीमलाइन का उल्टा की है, टर्बुलेंट। पढ़ते हैं की है। टर्बुलेंट फ्लो इज अ फ्लो इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स इरेगुलर। अंडरलाइन कर लो, यानी कि एग्जामिनर ये वाला वर्ड सर्च करेगा। टर्बुलेंट फ्लो विल टेक प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मोर दैन अ क्रिटिकल वेलोसिटी। हुण एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उत्थों तक जिहड़ा फ्लो है वो की रहिंदा है, स्ट्रीमलाइन रहिंदा है। उस तो उपर वो की हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। वो किस तरह होगा, दैट विल टेक अप इन सेकेंड पार्ट। एक एक पार्ट है लैमिनार फ्लो, वो तो रिवर के लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, अगर वो डिसिप्लिन च मूव करते हैं तो उन्होंने कहते हैं लैमिनार। पाइप वाले च रूटीन च असीं स्ट्रीमलाइन, यानी कि लैमिनार की है, स्ट्रीमलाइन वाला केस ही है। ठीक है, टर्बुलेंट लिख लो, 2 मिनट का टाइम। ये चेक करने वास्ते फ्लोर स्ट्रीमलाइन है या नहीं है, स्मूथ है या नहीं है, किहड़ा नंबर है बोलो। तुसीं पहलां सुनिया किते रेनॉल्ड पेन है, इज आफ्टर नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। उत्थे भी ये कास्ट है, जिवें अपने गुप्ता गिल अग्रवाल होंदे है, उत्थे रेनॉल्ड होंदे है। ठीक है, कॉमन नेम उधर। तुसीं भी किवें चैक करदे हो, तुसीं मार्केट च पेन परचेज करन चले गए, तुसीं पुछया किन्ने दा, कहंदा 10 रुपए दा, पुछया 20 रुपए दा, तो तुहानूं एक पेज दिंदा है, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਸਟ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ? ਸੈਕਿੰਡ। ਵਾਈ? स्ट्रीमलाइंड है, डिसिप्लिनड है, विच ए नहीं कदे चल पिया कदे नहीं चलिया, कदे आ गए क्लास कदे नहीं आए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जिहड़ी तुसीं पेन च चैक करदे हो ना आफ्टर यू कंप्लीट योर प्रोफैशनल डिग्री, ये जिहड़े कंपनीज वाले आउणगे दे विल आल्सो चैक योर दीज एबिलिटीज, तुसीं कंसिस्टेंट हैगे हो कि नहीं हैगे, तुसीं परफॉर्म किवें करदे हो, तो भी यहीं सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने पता लग जाता है, इस तरह पता लग जाता है। तो एक पाइप दे विच फ्लूइड फ्लो करता होवे, इहदे विच भी चैक करो, तो इहदे विच भी तो फ्लो करता है कि नहीं। पेन दे विच भी की बनाया, एक
थिन वेरी थिन पैसेज बने हुआ है, लिक्विड ਉਹਦੇ ਚ इंक है, इंक की कोई डेंसिटी है, इंक की कोई विस्कोसिटी है, ਜਿਹੜੇ फाइन पाइप चो आ रहा ਉਹਦਾ कोई रेडियस है। तो पाइप का डाया डी ਜਿਹੜਾ लिक्विड फ्लो कर रहा है ਉਹਦੀ डेंसिटी रो, ਉਹਦੀ विस्कोसिटी ईटा एंड लेट द वेलोसिटी बी वी। तो रेनोल्ड कहता एक नंबर है, आ नंबर चेक कर लिया करो, कहता बोलो कितना, बोलो रो डी वी बाय ईटा, कहता चेक दिस नंबर, if this number comes out to be less than 2000, if Reynolds number is less than 2000, ये नोट्स करेक्शन करने वाली है, then it is streamlined, disciplined। if it is more than 3000 उत्थे करेक्शन कर लो भी, नोट्स करेक्शन कर लो, NR greater than 3000 turbulent। if the number is between 2000 and 3000 फिर चेंज होगा फ्लो, फ्लो चेंजेस, स्ट्रीमलाइंड टू टर्बुलेंट। यानी कि इन बिटवीन प्रिडिक्ट करना मुश्किल होएगा, बट 2000 तो तुहाडे न्यूमेरिकल है, तुहाडी बुक च एक टाइप दी हुई है, ਉਹਦੇ 'ਚ डाटा दिता होगा, पूछेगा फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, तुसीं NR सॉल्व करोगे, NR तुहाडे कोल आ गया 1500, लैस दैन 2000 स्ट्रीमलाइंड, NR तुहाडे कोल आ गया 4000 टर्बुलेंट। कॉम्पीटिशन च भी यही होगा, NR पता करना होगा, फार्मूला किहदे कोल है, रो डी वी बाय ईटा। रो की चीज़ है भाई, डी की है डाया ऑफ द पाइप, वी वेलोसिटी, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होवे रेनोल्ड नंबर घट जाता है। चम्मच दे विच जो तुसीं पानी पाने हो, तुहानूं टेंशन होंदी है भी ज़्यादा ना हो जाए, किते डुल जूगा, एकदम पता नहीं लगना, अनप्रडिक्टेबल है। एग्रीड? हनी पाने हो फिर बड़ा तुसीं रिलैक्स होकर पाने, कोई गल नहीं। क्यों? हनी की विस्कोसिटी की है ज़्यादा है, ਉਹਦਾ फ्लो कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिनड है। सो ईटा अगर ज़्यादा होवे तो फ्लो ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, रेनोल्ड नंबर ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दैट मीनस ਇਹ ਉਹਨੂੰ ऑर्गेनाइज ਕਰਨ ਦੀ, डिसिप्लिन 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ कोशिश करता है। लिख लो।